ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری ملی ڈاکٹر سائرہ بانو پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ حملہ اسپتال چورنگی کے قریب انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کے دوران ہوا۔ نامعلوم افراد نے ڈنڈوں اور پتھروں سے گاڑی پر حملہ کیا۔ حملے میں اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری، سائرہ بانو محفوظ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران منہاس، ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران، بتائیے گا کہ کیسی حالت ہے سائرہ بانو کی؟ جی بالکل، سائرہ بانو جو ہے اس حملے میں محفوظ رہی ہیں۔ پتھروں سے اور ڈنڈوں سے جو ہے حملہ کیا گیا تھا۔ تازہ ترین جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق جو ہے اس وقت جو ہے قائد آباد پولیس اسٹیشن میں جو ہے مقدمے کے جو ہے اندراج کی جو ہے سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں جو ہے مقدمہ درج کر دیا جائے گا۔ اس وقت جو اطلاع ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر سائرہ بانو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ضلع ملیر کا علاقہ ہے، اسپتال چورنگی کے قریب جہاں پر ان پر حملہ کیا گیا ہے، یہاں پر لینڈ گریبرز کے حوالے سے جو ہے بدنام زمانہ علاقہ ہے۔ پہلے بھی ماضی میں یہاں پر انکروچمنٹ کے دوران جب واقدار کرائی گئی ہیں جگہیں، سرکاری جگہیں جن پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس وقت بھی جو ہے تصادم کی صورتحال سامنے آتی رہی ہے، لیکن اس طرح کی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جب کسی اسسٹنٹ کمشنر پر جو ہے باقاعدہ پتھروں اور ڈنڈوں سے جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سائرہ بانو کے ساتھ جو ہے پولیس اہلکار بھی موجود تھے جن کی مداخلت کی وجہ سے وہ محفوظ رہی ہیں، لیکن اب جو ہے مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ مقدمے کے اندراج کے بعد جو ہے کوشش کی جائے گی اس میں اسسٹنٹ کمشنر پر حملہ کرنے میں جو لوگ ملوث تھے انہیں جلد سے جلد جو ہے گرفتار کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر جو سائرہ بانو ہیں اور دیگر جو عملہ ہے انتظامیہ کا، وہ بھی جو ہے پولیس سے رابطے میں ہے، اور جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی جو ہے تھانے کے ایس ایچ او سے مسلسل رابطے میں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا سخت مقدمہ درج کیا جائے تاکہ جو لینڈ گریبرز اس طرح کی دوبارہ کوئی کارروائی نہ کر سکے، کسی بھی سرکاری افسر کے اوپر جو ہے اس طرح سے حملہ نہ کر سکیں۔ انکروچمنٹ نے وہاں پر جو کارروائی کی ہے اس میں کافی جگہوں پر جو غیر قانونی تعمیرات موجود تھیں اس کو جو ہے مسمار کیا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ مشتل افراد تھے، لینڈ گریبرز تھے، ان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ اب جو ہے مقدمے کے اندراج کے بعد جو ہے یقینی طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی تاکہ جلد سے جلد جو ہے ان ملزمان کو گرفتار کر دیا جائے۔ کامران، یہ انکروچمنٹ کے خلاف ایک اہم آپریشن ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لینڈ گریبرز بھی وہاں پر موجود ہیں، تو کیا اس اہم آپریشن کے لیے سائرہ بانو کو کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی تھی؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اب جو وہاں پر آپریشن ہو رہا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جب انکروچمنٹ کا اس طرح سے اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا انتظامیہ کے لوگ جب آپریشن کرتے ہیں تو باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہے انکروچمنٹ پولیس بھی ہوتی ہے، اور جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ پورا جو ہے ایک ٹیم بند ہوتی ہے جس کی سربراہی اسسٹنٹ کمشنر سائرہ بانو کر رہی تھی، تو اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر سیکورٹی موجود تھی، وہ محفوظ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ سیکورٹی موجود نہ ہوتی تو یقینی طور پر جو یہ لینڈ گریبرز سے جنہوں نے ڈنڈوں سے اور پتھروں سے حملہ کیا ہے ان کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ انہی دفعات کو اور انہی زاویہ کو دیکھتے ہوئے انہیں جو ہے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقدمہ اس وقت جو ہے درج کیا جا رہا ہے۔ کامران، یہ بھی بتائیے گا کن کن پرٹیکولر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا؟ دیکھیں، ابھی تک تو مقدمہ درج نہیں ہوا، مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر جو ہے اس مقدمے میں 324 دفعہ کا جو ہے ضرور جو ہے اندراج کیا جائے گا، کیونکہ جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور دفعہ 324 اس کو ضرور لگے گی۔ اس کے علاوہ جو چاہے سرکار میں بھی مداخلت کی گئی ہے، اس کے علاوہ جب یہ حملہ کیا گیا تو اس پر مغالطات بھی بہت زیادہ دی گئی، شور شرابہ بھی کیا گیا، نعرے بازی بھی کی گئی، دھمکیاں بھی کی گئی۔ ان سب دفعات کو جو ہے متوقع طور پر اس مقدمے میں جو ہے شامل کیا جائے گا، تو یقینی طور پر ایک سخت مقدمہ ہوگا۔ کسی کو 324 کا جو مقدمہ ہے، کسی کو جان سے مارنے کی کوشش، اور اس کی فوٹیج بھی جو ہے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے حملہ کیا جا رہا تھا، تو یقیناً ملزمان کے خلاف جو ہے سخت تعزیری کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا کامران، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، ویڈیوز بنائی گئی ہوں گی فون سے، تو کیا اس میں جو لوگ ہیں ان کی شناخت کر سکے ہیں پولیس والے اب تک؟ اب تک تو کوئی واضح طور پہ پولیس جو ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی خاص طور پہ جو ہے لوگوں کے ویڈیوز بھی جو ہے منظر عام پہ آنے سے روکتی ہے۔ کچھ ویڈیوز جو ہے ہمارے سامنے ضرور آئی ہیں، لیکن پولیس کراچی میں برسات نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ انتظامیہ کی نااہلی، مختلف علاقوں میں برسات کا پانی جمع ہو گیا۔ ایم اے جناح روڈ پر بھی برسات کا پانی موجود ہے۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔
इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से हम तफसीलात जानेंगे जो कि वहीं पर मौजूद है। नुमान, बताया गया क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? शहर कराची में सुबह से ही आज हम देख रहे हैं कि बरसात का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात का सिलसिला जारी है। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद व दीगर इलाकों में तेज बरसात जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोरंगी, शाह फैसल, मलीर और इससे जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर हल्की बरसात हुई है। एम.ए. जिना रोड पर भी बरसात जो है वो तेज भी हुई है, हल्की भी हुई है और इस वक्त भी जो हल्की बरसात का सिलसिला है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है, लेकिन नक्काशी आब ना होने के बराबर है। इंतजामिया की गफलत की वजह से, नाअहली की वजह से सड़क पर पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर हो रही है। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सके तो इस वक्त भी एम.ए. जिना रोड पर कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का सिलसिला जारी है। वक्फे से यहाँ पर बरसात हो रही है, अभी भी बरसात हो रही है। नक्काशी आपके नामुनासिब इंतजामात हैं, बरसात का पानी सड़क पर मौजूद है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और इस वक्त भी फ्रेम में आप देख रहे होंगे, कैमरे की आंख से आपको नजर आ रहा होगा कि अभी भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, क्योंकि आधे से ज़ायद सड़क पर जो बरसात का पानी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो जाने वाला रास्ता है वो बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से एम.ए. जिना रोड पर ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर है। शहरियों का ये कहना है कि नक्काशी आपके नामुनासिब इंतजामात हैं, जब बारिश रुकती है नक्काशी आप नहीं होती है, जिसकी वजह से जो पानी है जमा होते होते पूरी सड़क पर फैल जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी नुमान, बल्दिया की जानिब से कबल अज़ बरसात ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं नक्काशी आप के लिए, और यहाँ पर ज़रा सी बारिश हम देखते हैं और सड़कों का बुरा हाल हो जाता है, ये क्या मामला है? अच्छा, यकीनी तौर पर बल्दिया उज़्मा का जो ऑफिस है वो भी इसी रोड पर आगे जाने के बाद जो है वो थोड़ा करीब ही है, लेकिन उसके बावजूद ये इंतहाई मसरूफ़ शारा होने के बावजूद एम.ए. जिना रोड एक अहमियत की हामिल सड़क है और काफ़ी जो है वो ये मसरूफ़ शारा रहती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो बल्दिया उज़्मा के बुलंद बांग दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। सड़कों पर पानी मौजूद है, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल में जो नक्काशी आपकी जो टीमें हैं वो न जाने कौन सी सड़कों पर काम कर रही हैं, कौन से इलाकों में नक्काशी आप करने में मसरूफ़ है कि उन्हें एक से शुरू होने के बाद टावर तक जाती है। इस शारा पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मोबाइल मार्केट की तरफ ये पानी मौजूद है और जो सीवरेज का पानी है वो सड़क पर मौजूद है। शारा पर जो है वो गाड़ियों का रास्ता जो है वो कम होता जा रहा है। तमाम चीज़ें देखने के बावजूद नक्काशी आपकी जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी अच्छा नुमान, हम ये देखते हैं कि जब भी बारिश होती है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से शहर का दौरा किया जाता है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी दौरा किए जाते हैं और उनकी जानिब से काफ़ी तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श जवाब सामने आता है। उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें कहा जाता है कि कहीं पर भी बारी नहीं खड़ा। और जब बारिश की सूरत हाल हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं या बाहर निकल कर देखते हैं तो सड़कों पर पानी जमा होता है, तो ये बिल्कुल मुतज़ाद बयानात सामने आते हैं। इसके लिए इंतज़ामात क्यों नहीं किए जाते? यकीनी तौर पर शहर कराची जो है वो एक बड़े रकबे पर जो है वो बना हुआ है और जिन इलाकों का, जिन जगहों का मेयर कराची विज़िट करते हैं उनमें शारा फैसल है और इससे मुल्हिका जो बड़ी शाराएँ हैं, जो मरकज़ी शाराएँ हैं, उनका विज़िट किया जाता है, जहाँ पर जो है वो नक्काशी आपके जो इंतज़ामात हैं उन्हें मुकम्मल जो है वो कर लिए जाते हैं और वहाँ पर जो है बड़ी सड़क होने की वजह से इसका मतलब तो सिर्फ यही है ना कि जब लोगों को पता होता है, बल्दिया उज़्मा को पता है कि जहाँ के दौरे किए जाएंगे मेयर कराची की जानिब से उन सड़कों को साफ कर दिया जाता है, जो बाकी रोड्स मौजूद हैं जहां पर पानी खड़ा होता है, लोगों को मुश्किलात का सामने, उन्हें उनकी निकासी आपके लिए कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए जाते? शहरियों से जब हम बात करते हैं तो शहरियों का भी यही कहना होता है कि मेयर कराची अगर शारा फैसल का दौरा कर रहे हैं तो फिर उन्हें वहाँ से निकल कर जो है वो सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची और इससे जो मुल्हिका इलाके हैं, जिस तरह अब एम.ए. जिना रोड की बात ही कर ली जाए तो एम.ए. जिना रोड पर ही ऑफिस है बल्दिया उज़्मा का, इससे आगे जाकर इस पर और जब जो अब अपने ऑफिस से अगर ये जो हुक्काम है अगर निकलें और सड़क के करीब आए, एम.ए. जिना रोड पर आएँ, इस जगह
पर मोबाइल मार्केट की तरफ आएँ तो इन्हें मालूम होगा कि सड़क पर पानी इस वक्त भी मौजूद है, हमारी गाड़ी भी पानी के अंदर मौजूद है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद नक्काशी आपके इंतजामात यहाँ पर नहीं है और ना ही यहाँ पर नक्काशी आपकी कोई टीम नज़र आ रही है, जबकि ट्रैफिक की रवानी इसकी वजह से काफ़ी मुतासिर हो रही है। शहरियों की जानिब से बारहा मरतबा ये कहा जाता है कि शाहराह फैसल के अलावा भी दीगर इलाके शाहराहों कराची का पर पानी खड़ा है और शहर का हुलिया बिगड़ गया है। निकासी आपके खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए, सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। बहुत शुक्रिया अनुमान गुल। मॉनसून का नया स्पेल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सदर जिन्ना अस्पताल और काला पुल पर बारिश, MA जिन्ना रोड के अतराफ रिमझिम, बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। जी हाँ, मानसून का नया स्पेल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है, सदर जिन्ना अस्पताल और काला पुल पर बारिश, MA जिन्ना रोड के अतराफ रिमझिम, बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त कराची का मौसम खुशगवार है। मानसून का नया स्पेल कराची में दाखिल हो चुका, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, सदर जिन्ना अस्पताल और काला पुल पर बारिश, MA जिन्ना रोड के अतराफ रिमझिम, बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। जी हाँ, बेशतर इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू है। मॉनसून का नया स्पेल शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है नम्रा रियासत, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नम्रा, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर भर में के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से ही मानसून के तीसरे स्पेल की बारिश का आगाज हुआ था। गुज़िश्ता शब से जो है वो आगाज हुआ। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि 31 जुलाई तक शहर भर में मानसून के तीसरे स्पेल की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और सुबह भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे और इस वक्त भी शाम से भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जो है MA जिन्ना रोड, सदर, अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश है। डिफेंस और कयूमाबाद पर भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो चंद रोज कबल ही मानसून के तीसरे स्पेल की पेशगोई कर दी गई थी और अब जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। सुबह सवेरे जो बारिश हुई उसमें जो है वो तेज बारिश मुख्तलिफ इलाकों में देखी गई, जिसके आदाद-ओ-शुमार भी महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कर दिए गए थे। लेकिन इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल की बात करें तो मौसम खुशगवार है, मतलब ये अबर आलूद है और महकमा मौसमियात की जानिब से कल तक जो है वो वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। नम्रा, वक्फे से बारिश जारी है, शहरियों के क्या तासुरात हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? यकीनी तौर पर शहरी जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रवा माह की अगर गर्मी की शिद्दत के हवाले से बात करें तो दिन और रात जो है वो रिकॉर्ड गर्मी जो है रिकॉर्ड की गई थी कि दिन के औकात के साथ साथ रात के औकात में भी शदीद गर्मी की लहर रही शहर कराची में। लेकिन जैसे मानसून के तीसरे स्पेल की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ शहर भर में तो यकीनी तौर पर शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं और शहरी जो इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। सुबह जब बारिश हुई और मुख्तलिफ इलाकों में फूड पॉइंट्स पर खुसूसी तौर पर हमने रश देखा और इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी है। तो शहरी जो है मुख्तलिफ तफरीगाहों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो है वो साहिल का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ शहरी जो है वो खुश नजर आ रहे हैं और उनकी तवक्को है, उम्मीद करते हैं कि वो बारिश इस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि मौसलाधार बारिश जो है वो शहर कराची में होगी, उसके मुंतज़िर अभी भी दिखाई देते हैं। लेकिन सुबह के औकात में जो दोपहर के औकात में बारिश हुई वो जो है वो इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस वक्त जो शाम के बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, वो हल्की बारिश और बूंदा पानी का सिलसिला जारी। नम्रा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, ये स्पेल कब तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात की जानिब से ये जो बारिश के मानसून के तीसरे स्पेल की पेशगोई की गई थी वो 29 जुलाई से 31 जुलाई का कहा गया था और इसी तरह से आपने देखा कि गुज़िश्ता शब से शाम से जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और रात गए तेज बारिश हुई मुख्तलिफ मकामात पर। सुबह हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से तेज बारिश हुई और मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश भी सामने आई है और बीच में जो है वो वक्फे के बाद शाम से दोबारा ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा, तो कल सुबह तक जो ये मानसून का तीसरा स्पेल का सिलसिला जारी रहेगा और अगस्त से जो है मौसम में बेहतरी की भी तवक्को जाहिर की गई है कि शहर कराची में जिस तरह से जुलाई में शदीद गर्मी की लहर रही, जून में शदीद गर्मी की लहर रही, उसमें जो है कमी मुतवक्के हो सकती है, दर्जा हरारत में कमी आएगी, नमी के तनासुब में कमी आएगी, इसके साथ साथ जो है गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी, जिसके बाद जो है वो अगस्त का पूरा माह महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की जो है वो कमी की तवक्को जाहिर की गई है। अच्छा नम्रा, बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है?
सबसे ज़्यादा बारिश तो आज जो सुबह के आदाद शुमार के मुताबिक मौसमियात के मुताबिक गडाफ में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो औरंगी टाउन में जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई, जिसमें 24.4 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में 2-2 मिलीलीटर बारिश में शार फैसल और ताक के इलाके शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश शहर में आज सुबह के आदाद शुमार के मुताबिक हुई है वो गडाफ में हुई है, और दूसरे नंबर पर औरंगी टाउन में हुई है, और तीसरे नंबर पर सरजानी टाउन में जो है वो बारिश हुई है। और वो सुबह के आदाद शुमार से अब जो शाम के बाद से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके अभी तक जो है वो आदाद शुमार जारी नहीं किए गए, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जो कल सुबह तक हमें देखने में मिलेगा। और ये मौसम कल तक ऐसा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया नमरा रियासत। कराची की जिला किमाड़ी में ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ मकामी होटल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी देखिए, यहाँ पे एक मकामी होटल में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि ज़िला किमाड़ी में जो सरकारी ज़मीनों की अलाटमेंट की जा रही है वो गलत है, और इनका मुतालबा है कि जो मकामी अफराद हैं, जो मकामी कोर्ट हैं, उनको मुस्तकिल किया जाए और ज़मीनों की अलाटमेंट का जो फ़ैसला है वो मुस्तरद किया जाए। इस वक्त जी सिंध महाज के रहनुमा रियाज चांडू साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे जान लेते हैं आज की जो कॉन्फ्रेंस है ज़िला किमाड़ी में ज़मीनों की अलाटमेंट, इसका फोकस है, क्या कहेंगे, बुनियादी मुतालबा क्या है? देखिए, बुनियादी मुतालबात ये हैं कि कराची के वो मज़ाफ़ात में हज़ारों साल से, पाकिस्तान से पहले भी एक गोट हैं, इंसानी आबादी हैं, उनको मालकाना हुकूक हैं, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड के तहत उनके वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट हैं। क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं? आप उन्हें अपने घरों से बेदखल करके सिंध हुकूमत और डिफेंसिंग हाउसिंग अथॉरिटी को वो ज़मीन अलाट करके उनको दे रही है। डिफेंस हाउसिंग स्कीम अगर डेवलपमेंट का नाम है तो क्या मकामी लोग इंसान नहीं, उनको आप रहने नहीं देंगे? तो ये काबिल मजम्मत है, ये गैर कानूनी काम है। इस वजह से आज यहाँ सिंध के सारे लोग बशमूल मजहबी जमायतें, मरकज़ी पाकिस्तान की जमायतें, सिंध के नेशनलिस्ट, वो हम सब बैठे हैं। सुना आपने रियाज चांडू साहब जो जी सिंध महाज के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि सिंध की कॉम्परस जमातें, मरकज़ी जमातें और मजहबी जमातें जो आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, इन सब का ये फ़ैसला है कि एक मुश्तरका जदोजहद की जाएगी और मकामी लोगों को बेदखल होने नहीं दिया जाएगा। जी, कल से गल्ला मंडियाँ, ग़ज़ाई अजनास की मार्केटें 3 रोज़ के लिए बंद कर दी जाएंगी। होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। कराची की दीगर ताजिर तंजीमों ने होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। मज़ीद हम जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ग्रॉसरी होलसेल एसोसिएशन की जानिब से कल से हड़ताल का ऐलान किया गया है और 3 रोज़ तक हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की बुनियादी वजह जो विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है, जिसके नतीजे में ग़ज़ाई अजनास की कीमतें तकरीबन 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। हड़ताल करने की नौबत क्यों आई है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम, जो कि सदर हैं ग्रॉसरी होलसेल एसोसिएशन के। ये बताएँ कि आप हड़ताल करने जा रहे हैं, हड़ताल की बुनियादी वजह क्या है और लाहेमल क्या होगा अगर आपकी मुतालबात मंजूर नहीं हो? वो दुनिया में कहीं नहीं है कि एक ही मद में 4 जगह टैक्स वसूल किया जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख 75 साल में भी ऐसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में पंजाब, KP के, सिंध और बासुमत कराची, ये सब शामिल हैं हड़ताल में। आप बेफिक्र हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ आला हुकाम तक जाएगी और ये सुनवाई भी होगी इंशाअल्लाह। जी, मारूफ ताजिर रहनुमा अतीक मीर और जमील पराशा भी मौजूद हैं, जिन्होंने 1 अगस्त को अपने एहतजाज का ऐलान किया है। एहतजाज हड़ताल करने जा रहे हैं ग्रोसरी एसोसिएशन ग़ज़ाई अजनास के ताजिर। आप इसकी हिमायत का ऐलान करते हैं और आप लोगों ने भी 1 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया है, उसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या लाहेमल होगा? देखिए, ये ग्रोसरी पर जो टैक्स लगा है इसके हम सब मुतासरीन हैं। इनका एहतजाज हम इसलिए भी उसमें शामिल हैं कि ये गरीब के घरों के चूल्हे जो पहले ही बुझ चुके हैं, अब वो दाल, आटा, चीनी महंगा होने से यकीनन मुतासर होंगे। इस हुकूमत को किसने ये मशवरा दिया कि वो लोगों के पेट काटना शुरू हो जाए? लिहाजा एक तरफ हम बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़ 1 अगस्त से हमने कराची में सड़कों पे आने का प्रोग्राम बनाया है।
FBR की ताजी दोस्त स्कीम भी आपके उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, उसमें भी आपने कहा कि 1 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? या 12,000 रुपये, कोई अपने आप बड़ा ताजिर है तो वो 12,000 रुपये साल भरता रहे, उसको अचानक जब SRO आया तो पता चला कि वो 60,000 रुपये कम से कम कर दिए गए। तो ये तो बिल्कुल एक इन्होंने अंधी छड़ी लाठी चला दी कि पहले एंट्री दे दो अपनी, जब लोग रज़ाकाराना तौर पे इसमें एंट्री देने लगे ताजिर दोस्त स्कीम में तो इन्होंने अचानक से उसके रेट कहीं से कहीं पहुंचा दिए। लिहाजा हम सब इसके ख़िलाफ़ हैं, ये ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है, ताजिर दुश्मन स्कीम है। उनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक ना सिर्फ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा बल्कि अगला लाहेमल भी जो तय किया जाएगा और हो सकता है कि एहतजाज के दायरे को वसी किया जाए। जी और नाज़रीन, तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी। 6 महकमों के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड, सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन इसमें शिरकत करेंगे। इस पर मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने जो 6 महकमों के सीनियर तरीन अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल सुबह 11:30 बजे वज़ीर हाउस में तलब कर लिया है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकावला उन्नड़, चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद नजम शाह, सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली रहमानी और दीगर जो मुतलका 6 महकमे उनके सेक्रेटरी शरीक होंगे। इजलास में महकमा कानून है, पार्लियामानी अमूर और महकमा बहबूदी आबादी, महकमा सेहत, महकमा मवेशी व माहीगिरी, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा ज़राअत कीमत वरस के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने की मंजूरी दे दी जाएगी। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कमिश्नर कराची मानसून ट्री प्लांटेशन मुहिम, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने पौधा लगाकर मानसून ट्री प्लांटेशन मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस पर भी हमारे साथ आज़ाद नोहड़ियों मौजूद हैं। आज़ाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची ने मानसून के मौसम में शहर कायद में 1 माह के अंदर 2 लाख पौधे लगाने का ऐलान कर दिया, जिसका चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। इस हवाले से सैयद आसिफ हैदर शाह ने चीफ सेक्रेटरी हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। उस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन अली नकवी, सेक्रेटरी जंगलात व जंगल हयात डॉक्टर बदर जमील मेंद्रो, सेक्रेटरी माहौलियात नबीला उमर भी मौजूद थी। उस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने कहा कि मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरगीब देना है और मौसमी तब्दीली से पाकिस्तान इस वक्त जो है बुरी तरह से मुतासर हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे सिविल सोसाइटी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शजरकारी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर वारिस अली के वफ़द की वज़ीर सेहत डॉक्टर ऐसा पीछू हो, सेक्रेटरी महकमे सेहत रेहान इकबाल से मुलाकात हुई है। हमारे नुमाइंदे मीर केरियो बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर वारिस अली और उनके वफद ने वज़ीर सेहत डॉक्टर अदरा फजल पेचू हो, सेक्रेटरी महकमे सेहत रेहान इकबाल से मुलाकात की है। वाईएसएम के सदर डॉक्टर वारिस अली ने अस्पतालों के मसाइल पर वज़ीर सेहत को ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने वाईडीए के मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इजलास में ये ब्रीफिंग दी कि ग्रेड 17 के जो 1000 के करीब मेडिकल अफसरान हैं उनके प्रमोशन के हवाले से नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी किया जाएगा, जबकि कोविड के दौर में जो डॉक्टर्स भर्ती किए गए थे उनकी तैनाती की PMDC रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद यकीनी बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर केरियो। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक रुमैती ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और ताजिरों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बखीत अतीक का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताजिरों की आसानी के लिए ज़ीरो ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत कर दी है। इससे ताजिरों को कारोबार शुरू करने में बहुत आसानी होगी, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ताजिर ऑनलाइन अपना कारोबार रजिस्टर करा सकेंगे। कारोबारी हजरात के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी मुतारिफ करा दिया गया है। ताजिरों का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजिर दोस्त इक़दाम से कारोबार बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। नए ताजिर भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। कराची चैम्बर के ताजिरों ने UAE के कौंसल जनरल बखीत अतीक रुमैती की आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।